Start the recording and yes. कुछ रहेगा ना एक बार मेरे को व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि मेरा पता नहीं इधर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा भी। हाँ सर, मैं था। सर मैं था। सर ने सर मैं भी। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, उनके साइड से। नहीं नहीं, उनके साइड से इशू बराबर है, आप बोलो।
The ease with which one can work with concrete is called workability. This can be measured using a simple test called the slump test. Let me show you the procedure. Slump cone test is a simple and popular test extensively used at sites to assess the workability of the concrete mix. The test should be conducted at the commencement of the concreting operations or whenever the workability of the concrete changes. The apparatus for conducting the slump test essentially consists of a metallic mold in the form of a frustum of a cone with a base plate. A steel tamping rod of 16 mm diameter and 60 cm height is to be used for compacting. The internal surface of the mold should be thoroughly cleaned of moisture and any hardened concrete before commencing the test. The mold is placed on a smooth, horizontal, rigid and non-absorbent surface. It is then filled in 4 layers with the thickness of each layer being approximately 1/4 of the height of the mold. Each layer should be tamped 25 times evenly using the rounded end of the tamping rod such that strokes are uniformly distributed over the cross section. After the top layer is tamped, the concrete is leveled with a trowel so that the mold is filled exactly to the top. The mold is then removed by raising it gradually. The concrete will subside. This subsidence is known as slump. This operation shall be carried out without any jerks or vibrations and within a period of 2 minutes after completion of final tamping. The difference in level between the height of the mold and that of the highest point of the subsided concrete is measured. The subsidence measured is the slump of the concrete. The slump may either be a true slump, a shear slump, or a collapsible slump. The true slump is the desired form of slump that we require. In harsh mixes, the concrete slides down in an inclined plane. This is known as shear slump. In collapse slump, the concrete collapses as soon as the cone is removed. It usually occurs in very wet mixes. The concrete demonstrating a shear or collapse slump is considered unsatisfactory. In case of slump results beyond the specified limits, the mix proportion needs to be adjusted, especially the water content. The slump can also be varied by changing the proportion, size and combination of the various sizes of the aggregates. It is advisable to assess the workability of concrete mix using a slump cone. Ensure that the cone is filled in a proper manner as indicated. Notice the type of slump, shear and Okay, so this was slump cone test. Okay, so ये concrete का workability check करने के लिए we use. So there is a limitation to this test. Okay, limitation क्या है कि if we have a stiff mix, then slump will always be 0. Okay, then वो कितना stiff है we cannot determine. For example, say at water cement ratio of 0.35, मेरे को slump गिरा ही नहीं, मैंने उठाया and this is not subsiding, मेरे को पूरा height मिला slump का. Okay, then what happens for 0.32 or 0.30, 0.28, मैं कितना भी नीचे गया, it will still give me 0 height. So I cannot determine my workability after a certain limit, okay, below a certain limit. So उसके लिए we have another test. Okay, this is compaction factor test. So we have another test. So workability of concrete, यहाँ पे first we define workability of concrete. The amount of work required to place concrete and compact it thoroughly. Okay, so the ease with which you can work with concrete, right? So you can place it easily or you know, whatever you can do. So that is known as workability of concrete. Then increases with addition of water, but it reduces strength. Okay? Addition of water reduces strength, so it is not desirable. Use of aggregate which are rounded and have smooth surfaces increases workability.
but keep this in mind as a thumb of rule. Whatever increases workability will reduce strength by default. So if you use a smooth round aggregate, it increases workability, it will decrease strength. If you use angular aggregate, right, it's एकदम pointy है, so that will reduce workability, but that would increase strength. So उसमें उल्टा होगा. Then workability can be improved by adding air entraining agents such as Winsol resin or Direx. Okay, you can do this. It actually improves workability, but this is also not preferred, because if you introduce air bubbles to your system, again strength will decrease. Okay. So the best solution is to use a superplasticizer. If you use a superplasticizer at recommended dosage, okay, at recommended doses is very important. So if you use that superplasticizer at recommended dosages, what will happen? The workability will increase and strength will not decrease, because you are not actually putting more water. Okay. Recommended dosage इसलिए important है कि if you put less, तो obviously you won't get any workability, but if you put more, setting time gets delayed. Okay, so initial and final setting times get delayed a lot. So अगर superplasticizer का dosage है say 1% and say you put 1.5 or 2%, then इसका setting time anywhere जो it should be around 3 to 6 hours at max. It will go anywhere around 3 days to 6 days. ठीक है, up to a week भी होता है, कभी कभी देखा है हम लोग ने. बहुत सारा सुपरप्लाइजर डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग वर्केबिलिटी, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होता है कंक्रीट मिक्स में. तो वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम होता है. जब बहुत कम सी वाटर सीमेंट रेशियो होता है तब आपको सुपरप्लाइजर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, इफ़ द मिक्स इज़ नॉट डिज़ाइन प्रॉपर्ली. तो जब ऐसा होता है तो लोग इसको ओवरडोज कर देते हैं. जब इसको ओवरडोज करेंगे तो क्या होता है कि एक्चुअली में कंक्रीट डजंट सेट एट 3, 4, 5, 7 days. तो साइड पे 7 दिन तक कंक्रीट गीला ही पड़ा है, सूख नहीं है. तो ये भी होता है. ठीक है, तो recommended dosage is very important. If you want to have more workability, get better quality superplasticizer. If you get up to 40-50% तक का भी water reducing superplasticizer you can get. Okay, so don't put extra dosage, you get better quality of superplasticizer. Then workability of concrete is better determined by compaction factor test. हम लोग ने देखा, क्योंकि क्या होता है कि after you go below certain water cement ratio, you cannot tell the difference from the slump test, because हर एक का slump height 0 आएगा. Okay, so that's why you have this compaction factor test. So we'll see a video and then देखते क्या होता है.
didn't read well. Okay, 0.92 k around, it is not acceptable. Okay, so that was about compaction factor test. Then we come to placing of concrete. Okay, so now we have a good quality concrete and then now we have to place it to site. So यहाँ पे some of the most care should be taken. Mistakes यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं. Okay, so first of all 30 minutes to 3 hours after adding water. 30 minutes to 3 hours मतलब कैसा है कि if you put some set retarding mixtures तो आपका setting time बढ़ जाएगा. So then you can stretch up to 3 hours, but otherwise 30 minutes में it should be placed. Okay, then it should be transported quickly. Placing of concrete should be laid in thin layers. Okay, this is very important. So for example आपका एक concrete का truck आया and then next truck is arriving after some time, so it does not mean कि आप एक slab खत्म करोगे फिर next slab पे जाओगे फिर next slab पे. अगर वो if it has to be casted as a single element, then you have to cast it in thin layers. Okay, not section by section. तो आप vertically उसमें joints नहीं आने देते हो, आप horizontal joints आने देते हो. ठीक है, layer by layer. So that is how you should place concrete and each layer should be thoroughly consolidated. Consolidated मतलब क्या, उसको vibrate करना है, उसको compact करना है and then उसमें से जितना भी excess water है वो ऊपर से निकाल लेना है. ठीक है, that is called consolidation. Should not be dropped from a height of more than 1.2 meters. Okay, this is also very important because it will cause segregation. अगर आप इतने height से फेंकते हो तो उसमें इतना energy आ जाता है कि पत्थर पानी sand सब अलग हो जाता है. ठीक है, and see this is 4 feet height and if you take an average human height it will be around 5.5 feet या 5 feet के around. ठीक है, so अगर कोई worker है वो अपने सिर पे लेके जा रहा है concrete, so it will be at 6 feet height. तो 6 feet height से सीधा उसको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि फेंकेंगे तो segregation हो जाएगा. Right, so it is very important कि वो ऐसा नीचे ले अपना जो भी pan है and then बाद में उसको it can throw. Also all your columns are around 3 meter in height. Right, तो single phase में आप उसको ऊपर से ऐसा pour कर रहे हो, that is not allowed. What you should do is you should actually create a window at around 1.2 meters. इसमें से आप पंप डाल के 1 meter तक भरते हो concrete. Then you pull out the pump या जो भी आपका window था. You close the window, you open window at 2 meters and then you pour the concrete from there. Okay, so this is to avoid segregation. अगर आपने उसके ज़्यादा से फेंका तो it will segregate. Okay, concrete will segregate. Then if concrete has more water and has been laid in thick layers, okay, so this is basically saying if you don't place the concrete properly and then don't compact, what happens is water comes up at the top layer. ठीक है, water ऐसा concrete में से ऊपर के surface पे आ जाता है. This process is called bleeding and जो क्या होता है कि ऊपर फिर सीमेंट और वाटर का एक पतला सा फिल्म बन जाता है. वो फिल्म को हम लोग बोलते हैं लाइटेंस. ठीक है, तो लाइटेंस होता है उसमें और प्रोसेस इज ब्लीडिंग. सो ब्लीडिंग इन कंक्रीट हैज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. ब्लीडिंग इज नॉट प्रिफर्ड. कंक्रीट की मतलब स्ट्रेंथ को इतना अफेक्ट नहीं करता है बट ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी इफेक्ट करता है बिकॉज देयर आर सेट वाटर चैनल्स नाउ जिसके थ्रू जहाँ से पानी बाहर निकला है. सो 5 years के बाद सपोज देयर इज एन सॉल्ट और समथिंग कमिंग एट दैट पॉइंट, उसको अंदर तक पूरा एक पाथ रेडी मिलता है. राइट, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए दिस इज ब्लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड अवॉइड bleeding in concrete. Then we have compaction of concrete के after you have placed the concrete अभी आपको उसको compact करना है. तो compaction जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी नहीं करना है कम भी नहीं करना है. ठीक है, compaction concrete very important because इसमें से जो it makes concrete dense और इसमें से voids निकाल देता है. ठीक है, तो dense बना के voids निकाल देता है and you can do it by tamping. आप कोई rod लेके tap कर सकते हो या आप vibrator यूज़ कर सकते हो. ठीक है, दोनों का इसमें ध्यान के रखना है. अगर आपने ज़्यादा किया तो फिर से क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन होगा. आपने बहुत सारा वाइब्रेट कर दिया तो जो हल्का मटेरियल ऊपर आ जाएगा, हैवी मटेरियल नीचे बैठ जाएगा. राइट, तो एंड एट द सेम टाइम अगर आपने कम किया तो इसमें वॉइड्स रह जाएंगे. सो देयर इज़ एन इनफ अमाउंट ऑफ यूजुअली टाइम स्पेसिफाइड होता है कि वाइब्रेट अ सर्टेन एरिया फॉर 30 seconds एंड देन मूव फॉरवर्ड. ऐसा टाइम स्पेसिफाई करते हैं. यूजुअली वाइब्रेटिंग कंपैक्टिंग एनर्जी या कंपैक्टिंग एफर्ट भी दिया जाता है कि इफ़ यू आर यूजिंग दिस मशीन देन दिस मच टाइम, दिस मशीन दिस मच टाइम. ऐसा कंपैक्शन एफर्ट आपको कितना डालना है वो स्पेसिफाई किया जाता है. ठीक है, केयर शुड बी टेकन not to make excessive use of vibrator, otherwise concrete will become non-homogeneous and cause segregation. Okay, so this care has to be taken. But use of अच्छा ये भी एक बात है कि use of vibrator is best and most efficient way to compact concrete because it gives very dense concrete, obviously because you are machining.
we're using machine for this, so efficiency is going to be great, and concrete is going to be very good quality. Now we have placed the concrete, so now we have to cure the concrete. Curing में क्या होता है बेसिकली कि this concrete is exposed to environment, right? तो इसमें जितना भी पानी होता है वो पानी इवेपोरेट हो सकते बाहर जा सकता है, जब वो इवेपोरेट होकर बाहर जाता है तो कंक्रीट श्रिंक हो सकता है, राइट। एक चीज़ हो सकता है श्रिंक हो सकता है, दूसरा क्या होता है कि हाइड्रेशन रिएक्शन को जो पानी चाहिए सीमेंट को पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए, मतलब CSH बनाने के लिए उसको सीमेंट के साथ पानी चाहिए, अगर वो पानी इन्वायरमेंट में चला गया तो आपका सीमेंट है वो अनहाइड्रेटेड रह जाएगा, तो एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं होगा वो प्रोडक्ट में जो स्ट्रेंथ दे रहा है सीमेंट को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सम मेजर जिससे या तो पानी बाहर ना जाए या तो फिर उसमें इतना पानी हो कि बाहर जाए तो फर्क ना पड़े। देयर आर टू स्ट्रैटेजीज। तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी, ओके, पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी डन फॉर 28 डेज, नॉट लेस देन 10 डेज, इससे कम तो कभी नहीं करना है 28 डेज, बट इफ यू कैन डू मोर देन ऑल्सो इट इज़ प्रीफर्ड। 36 डेज या 48 डेज 90 डेज तक भी लोग क्योरिंग करते हैं टू गेट सुपीरियर स्ट्रेंथ। सो दिस इज देयर एंड सी देयर आर टू मेथड। जो फर्स्ट मेथड है इस यहाँ पे जो दिखाया है ये क्या कर रहे हैं कि एक बिटुमेन का पतला सा लेयर इस पर कोट कर रहे हैं, राइट, और सरफेस सीलिंग एडमिक्सर्स आते हैं, ओके, देयर आर सर्टन पॉलीमर्स जो यहाँ पे आप ऐसे डाल दोगे तो इससे क्या होता है कि दे विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर दिस कॉन्क्रीट सरफेस एंड देन पानी को यहाँ से सब बाहर जाने नहीं देंगे। तो अगर पानी बाहर नहीं गया तो फिर कंक्रीट में जितना आपने इंटेंट किया था जितना पानी रहे हाइड्रेशन के टाइम उतना ही रहता है, राइट, एंड देन देयर इज नो इशू। सेकेंड ऐसा होता है कि आप, दिस इज कॉल्ड पॉन्डिंग बाय द वे, सो आप क्या करते हो, ऐसा मोर्टर की ग्रिड्स बनाते हो एंड देन उसमें आप पानी डाल देते हो, राइट। देयर इज़ वन गाय हु फिल्स अप दिस होल थिंग एवरी डे, तो फिर इसमें से अगर कुछ इवेपोरेशन होता भी है तो भी कुछ इशू नहीं क्योंकि आपने बहुत सारा एक्सेस वाटर प्रोवाइड करा था। देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, आप घनी बैग यूज़ कर सकते हो, घनी बैग मतलब होगा गोनी होता है, ठीक है, तो आप गोनी को पानी में भिगा के उसके ऊपर रख सकते हो। देन यू कैन हैव लेयर ऑफ वेट सैंड, तो इसके ऊपर वेट सैंड रख सकते हो, यू वाटर प्रूफ पेपर आप इसके ऊपर रख सकते हो। पीपल हैज ऑल्सो यूज प्लास्टिक शीट्स, राइट, प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं पूरे एलिमेंट को, तो जो जितना भी पानी इवेपोरेट होता है वो अंदर का अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है कभी एनवायरनमेंट में, तो ऐसा भी लोगों ने किया हुआ है, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूज यू हैव एंड टाइप ऑफ मनी यू हैव, यू कैन चूज वन ऑफ द क्योरिंग मेथड्स, क्योंकि दीज जो है ये जो मेथड्स है वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बिकॉज इसके केमिकल कॉस्टली होंगे, बट देन यू डोंट रिक्वायर एनी मैन पावर ना, एक बार ये स्प्रे मार के चला गया इसको बाद में कुछ काम ही नहीं है, सालों साल स्प्रे चले रहेगा, जबकि इसके लिए आपको 28 दिन तक या 10 दिन तक प्रॉपर एक आदमी रखना पड़ता है, उतना वाटर रिक्वायरमेंट होता है। सो अगेन दिस इज चीपर मेथड बट इट इज़ मोर इन्वॉल्व, सो दैट इज़ क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। एंड नाउ वी हैव क्वालिटीज़ ऑफ गुड कॉन्क्रीट। तो गुड कॉन्क्रीट के क्वालिटीज़ क्या होते हैं कि इट शुड हैव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड डेंसिटी, तो ये तीन चीज़ अच्छे से होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये सब चीज़ होना चाहिए, बट स्ट्रेंथ तो आई थिंक सबको पता होता है क्या होता है कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब अफेक्ट टू रेजिस्ट ऑफ वेदरिंग एजेंट्स, एंड सेकेंड इसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टील के अंदर यूजुअली हम मतलब कंक्रीट के अंदर यूजुअली पुट एन रीइंफोर्सिंग मटेरियल, राइट, एंड रीइंफोर्सिंग मटेरियल करोड हो सकता है, तो इसका ड्यूरेबिलिटी खुद से ज़्यादा इसको रीइंफोर्समेंट के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इट शुड नॉट करोड, इट शुड नॉट अलाउ क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन या कार्बन डाइऑक्साइड कि वो सरफेस से, कंक्रीट के सरफेस से अंदर रीइंफोर्समेंट तक पहुँचे, राइट, क्योंकि अगर वो पहुँचेंगे तो वहाँ पे करोजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो अवॉइड करना है कोई भी कंक्रीट को। देन इट शुड हैव डेंसिटी, कोई हॉलो एयरवॉइड्स नहीं चाहिए, गैप्स नहीं चाहिए, एंड डेंसिटी शुड बी अराउंड 2400 kg per meter cube for pre-stressed or well-designed concretes and around 2500 kg per meter cube for normal concretes, right। फिर वाटर टाइटनेस होता है, वाटर परमिएबल नहीं होना चाहिए कंक्रीट के थ्रू। सो आप घर पे वगैरह लीक्स अगर किसी के होंगे तो देखा होगा कि इफ कंक्रीट क्वालिटीज़ अच्छा नहीं है तो पानी आ जाता है उसमें से, ठीक है, यूजुअली ड्यूरिंग रेन्स। दिस इज ऑल्सो मेन प्रॉब्लम ऑन डैम्स, क्योंकि अगर आपका डैम परवियस है तो काफ़ी सारा पानी उसमें से लॉस हो जाता है। आपके पास कोई टैंक्स है तो उसमें से भी यू स्टोर वाटर एंड देन यू कम नेक्स्ट डे उसमें पानी कम हो जाता है, राइट, तो दिस ऑल इज़ नॉट प्रेफर्ड। इनफैक्ट इसमें पानी की जगह पे कुछ और इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी हो सकता है, राइट, इफ़ यू हैव से पेट्रोल बंकर्स या ऑयल बंकर्स होते हैं, हर एक पेट्रोल स्टेशन पे आपने देखा होगा जो ऑयल होता है वो उसके नीचे एक बड़ा सा कंक्रीट का कंटेनर बना के वहाँ पे स्टोर किया जाता है, राइट। तो अगर उसमें क्रैक्स है या वो कंक्रीट परमिएबल है तो आपका पानी जा रहा है तो आपको इशू नहीं था, बट आपका भी ऑयल जा रहा है, राइट, आपका जो पेट्रोल जा रहा है वो सॉइल में से वेस्ट हो रहा है, तो इट कॉस्ट मोर मनी, ओके। सो इसलिए वाटर टाइटनेस या परमिएबिलिटी शुड बी लेस, देन इट शुड बी वर्केबल,
वर्कर लोग उसको इजीली साइड पे मिक्स कर पाने चाहिए, प्लेस कर पाने चाहिए, मोल्ड कर पाने चाहिए. दैट इज वर्केबिलिटी. एंड देन यू हैव रेजिस्टेंस टू वेयर एंड टेयर. ठीक है, समटाइम्स कंक्रीट को ये चीज़ झेलना पड़ता है, जैसे कि हो गया आपको रोड पे हो, राइट. तो एवरी 1 सेकेंड कार इज कमिंग विच इज़ गोइंग टू यू नो जो सरफेस पे रफ ट्रैक्शन क्रिएट करेगा एंड देन वो चले जाएगा. देन अगेन नेक्स्ट कार विल कम एंड देन अगेन. So there are going to be abrasive forces, right, which will sort of sand the surface, उसको घिसेंगे surface के ऊपर. तो at that time आपको concrete में wear and tear resistance भी चाहिए. Okay, and then we come to the second or main part of the lecture, which is concrete mix design. So this is the most this is the part where you actually design the mix, कि कितना percentage क्या होगा and how do you decide. Okay. So this is schematic. Usually you have 20% water and 10 to 13% cement, and the rest other is aggregate. And you have two types of mixes. एक nominal mix होता है and एक actually designed mix होता है. Nominal mix is जो साइड पे करते हैं 1 2 3, एक सीमेंट 2 खड़ी 3 रेती ऐसा डाल के मिक्स करके बना दो. That is called nominal mixes. For low strength mixes this is allowed. For anything above M25 you have to actually design the mix. Okay, and then we weight के बाद लेते हैं. Nominal mixes are by volume, by the way. So मतलब if you take 1 bucket cement you have to take 2 bucket sand and 3 bucket aggregate. This is by volume, whereas this is by weight. Okay, so ये ध्यान रखना है. Then you have characteristic strength that is defined by IS code. Okay, and it is said के अगर आपने 100 cubes या कुछ ऐसा कास्ट किया तो only 5% should be fall below your average, right. So for example if you are deciding M40 या M30 ग्रेड आपको बनाना है, तो अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को M30 बनाना है तो it should give 28 days पे it should give 30 strength, right. But अगर आप like if you cast 20 cubes तो 20 के 20 तो 30 नहीं देंगे ना आपको स्ट्रेंथ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो कितना वेरिएबिलिटी आप अलाउ करोगे, राइट. So only 5% of cubes are allowed to fall below this standard. Okay, only 5% of cubes, which is saying like अगर आपने 100 cubes cast किए टेस्ट किए तो only 5 should fall below this 30 value, right. उसके अलावा जितने भी 95 है they should exceed this 30 value. So this is what is characteristic strength. And how do you calculate it? You basically, okay, this is so nominal mixes. In nominal mixes का एक स्लाइड दिया हुआ है कि आप सीमेंट और फ्लाइश फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का रेशियो आप क्या डालोगे. ओके, एंड दिस इज ओनली अलाउड टिल M20 mixes, you should note. Okay, this is also taken from IS 456-2000, and anything above M20 you have to actually design the mix. Okay, and factors influencing choice of mix design, you have grade of cement, type of cement, aggregate ratio, ये सब कंट्रोल होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं. we'll see this in mix design एक बार करके. And also there are various methods. This is Bureau of Indian Standards or simply Indian Standard method or IS code method. This is American Concrete Institute ACI method, Road Note 4 method, arbitrary method, maximum density method, right. British method है. This is American Standard of Testing Materials, ASTM method. IRC, this is Indian Road Congress. So if you are designing highways या highway road पे bridges आप बना रहे हो तो that has a different mix design standard. Okay, इसमें different mix design होता है, तो that is done by IRC method. We usually use BIS method for normal construction. And इसमें ये 5 स्टेप होते हैं कि फर्स्ट यू कैलकुलेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ, देन आप वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट करते हो, बाद में आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो से आप एग्रीगेट कंटेंट निकालते हो. कोड में सब कैसे करना दिया हुआ है. एंड अगर आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो और वाटर कितना है वो आ गया तो देन यू कैलकुलेट सीमेंट, एंड देन ये दो आ गए तो इसके बाद आप एग्रीगेट कैलकुलेट करते हो. दिस इज द जनरल प्रोसीजर. सो सबसे पहले यू डिटरमाइन वाटर, देन यू डिटरमाइन सीमेंट, एंड देन यू डिटरमाइन एग्रीगेट्स. ओके, सो ओके, दिस वाज द test I was talking about. Okay, so tolerance factor is 1.65. So you allow a 1.65% of tolerance factor, and there is a standard deviation of 3, 4, 5. जो भी होता है, it is allowed. Okay, so you put that S का value here. You put standard deviation, and this is FCK. So if you are making M30, this is 30. If you are making M40, this is 40. तो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट स्ट्रेंथ मिल जाता है, एवरेज टारगेट स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए. सो इफ यू आर मेकिंग से M30, राइट, तो आपका जो टारगेट से इफ यू आर मेकिंग M35 तो आपको जो टारगेट स्ट्रेंथ आएगा वो इट विल कम अराउंड 36 और 38 ऐसा कुछ आएगा.
So you actually target for 37 या 38 and then you satisfy this condition, जो 5% वाला condition है वो, right? So अगर आप average है वो average आप मतलब आपको अगर 30 डिज़ाइन करना है तो यू टारगेट एन एवरेज ऑफ अराउंड 38, तभी जाके आपको ये कंडीशन 5% वाला सेटिस्फाई होगा. सो दैट इज हाउ यू डिसाइड FCK. एंड वंस यू गेट FCK you move to this chart and you select your A, B, C, D, E, F. यहाँ पे से क्या सिलेक्ट करना है आपको, ओके. एंड देन सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मेक M30, तो यहाँ पे से 30 लिया और मेरे को यहाँ पे से कुछ पता चला कि इट इज़ कमिंग आउट टू बी 32 या 34 जो भी कुछ आ रहा है. नाउ आई गो हियर से आई कैन सी के 29 to 35 जो है वो ये रेंज में, तो इट मीन्स आई हैव टू टेक C चार्ट, ओके. देन आई गो हियर, आई सिलेक्ट दिस C चार्ट, दिस इज C चार्ट आई एम सिलेक्टिंग. एंड ये साइड पे there are compressive strength, so I know I want 30 and I know I want C. तो ये 30 यहाँ पर है and ये C वाला चार्ट ये रहा, तो I am meeting this point, okay. अगर फिर मेरे को ये पॉइंट मिला उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट से नीचे आता हूँ and I see this water cement ratio, so I am landing somewhere around 0.46. so this is how I determine my water cement ratio कि मेरे को 0.46 मिल गया. एक बार मेरे को 0.46 मिल गया उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसको रहने देते. वी गो हियर, ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज वी हैव एग्रीगेट का साइज, वी हैव 10 mm, 20 mm, 40 mm. अगर हम लोग ने समझो हमारे पास 20 mm एग्रीगेट है, देन वी सिलेक्ट 186 kg ऑफ वाटर, ओके. यहाँ पे कॉन्क्रीट में दिया मिनिमम वाटर कंटेंट, ओके, मैक्सिमम वाटर कंटेंट. सो वी सिलेक्ट दिस 180 kg ऑफ मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ओके, बिकॉज वी वांट हाई वर्केबिलिटी. बाद में हम लोग को एक बार वाटर कंटेंट मिल गया उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे से वाटर सीमेंट रेशियो भी है. वी हैव 0.46 का वाटर सीमेंट रेशियो, we have cement content, okay. so then what we do, water content divide by water cement ratio, इससे हम लोग को cement content मिल जाएगा, okay. then once we get the cement content, फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सीमेंट का वेट आ गया, हम लोग के पास वाटर का वेट है, हम लोग सबका यहाँ पे से वॉल्यूम निकालते हैं. कैसे, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, ओके. तो पहले मास ऑफ सीमेंट जो हम लोग को मिला था डिवाइड बाय सीमेंट का डेंसिटी इज वेरी वेल नोन, ओके, काफ़ी स्टैंडर्ड वैल्यू है. देन अगेन वी टेक volume of water, then divide by density of water. Likewise we find सबका volume and then 1 minus everything will give us volume of aggregate, okay. So always we design for 1 m cube and 1 m cube के लिए हम लोग को एक बार ये सब मिल गया उसके बाद हम लोग 1 minus सब कुछ करेंगे तो हम लोग को aggregate मिल जाएगा. एंड एक बार aggregate का volume आ जाता है तो फिर हम लोग यूजुअली इसको 60-40 में स्प्लिट करते हैं, तो you get a 60% of coarse aggregate and 40% of fine aggregate, okay. एंड देन उसके आप डेंसिटी से, आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ आप डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा मास, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू फाइंड मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, एंड देन देर आर सम एडजस्टमेंट और करेक्शन दैट यू डू. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरफेस मॉइस्चर है, तो सरफेस मॉइस्चर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जो फाइन सैंड है, जो एग्रीगेट है वो फाइन रिवर सैंड होता है, वो रिवर सैंड को रिवर के नीचे से निकाला हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये 2% इसमें पानी ये लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट. तो इफ़ यू पुट 100 kgs ऑफ दिस सैंड, उसमें 2 kgs वाटर है ऑलरेडी, राइट. तो फिर आपको उतना वाटर कम करना पड़ता है और उतना सैंड एक्स्ट्रा डालना पड़ता है. तो अगर आप सपोज आपको 100 kg डालना है तो यू पुट एक्चुअली 102 kgs एंड देन 2 kg आपके पास उसमें वाटर है, तो वो वाटर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे से निकलेगा, ये वाटर का रिक्वायरमेंट है, वाटर का मास, उसमें से आप थोड़ा कम कर दोगे, ओके. सिमिलरली यू हैव वाटर एब्जॉर्प्शन. वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो आपका एग्रीगेट होता है वो कभी कभी आपने उसको पानी में रखा तो इट एब्जॉर्ब्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा होल्स वगैरह होता है, ठीक है. तो इट एब्जॉर्ब्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपने यहाँ पे जितना ये पानी प्रोवाइड किया है, ये पानी तो आपने सीमेंट के लिए प्रोवाइड किया था, राइट. बट अगर इसमें से थोड़ा क्वान्टिटी जो है ये एग्रीगेट ले रहा है, तो फिर ये आपको एग्रीगेट के लिए अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो यू ऐड दिस वाटर इन दिस वाटर कंटेंट, ओके. So these are called water adjustment. You do water adjustment and then you have your mix design. Okay, तो ये mix design होता है. And then we had this sum. So we did this sum. So I think you can ask your classmates. अभी हम लोग और 2-3 sum करेंगे अभी यही lecture में, तो you will come to know. Okay. So this is all we have on concrete. And here I think I'll stop sharing. And now what we can do is एक दो concrete mix का problem कर लेंगे, okay? According to you. So do you guys have this concrete के lectures? Do you have this PPT with you? Okay. Does anyone have? Do you have this PPT with you?
Sorry, I didn't get you, Raj. क्या आपके पास ये पीपीटी का लिंक है क्या? बिकॉज वी विल रिक्वायर दिस टेबल्स फ्रॉम IS कोड डिज़ाइन के लिए. ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग टू डू मिक्स डिज़ाइन राइट नाउ, हम लोग को वो टेबल लगेगा. ठीक है. ओके, सो मे बी यू, आई थिंक अगर आपके पास होगा तो सबके पास होगा. यू कैन एनीवेज, आई स्टिल शेयर द लिंक एंड ये लिंक शेयरिंग में ऑन है, राइट? सो आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप एंड देन you can open it. So जिसके पास नहीं है, you guys please open it. So and then हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आपके जो असाइनमेंट में एक सम है वो कोई भी एक सम कर लेंगे. ठीक है. So as an practice. So but then you guys have to do the sum. हम लोग I'll guide you through it. At the end of the lecture what I'll do, I'll show you a spreadsheet जिसमें हम लोग ये सब काम फटाफट कर सकते हैं. ठीक है. Okay, so which sum do we want to do, first or second? इसमें दो सम है. असाइनमेंट का कौन सा सम करना है अपने को, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? एक मैं करूँगा, एक आप लोग करना है. ठीक है. तो हम लोग कौन सा एक सम कर रहे हैं? हेलो. ठीक है. तो ओके, विल डिज़ाइन एन आर्बिट्री मिक्स. ओके, तो मैं आपको व्हाट आई डू, आई शेयर माय स्क्रीन. जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था उसी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग M45 का ग्रिड डिज़ाइन करते हैं. और से हम लोग ने लास्ट टाइम कभी किसके लिए किया था, वी डिज़ाइन M40 मिक्स, राइट? सो दिस टाइम विल डिज़ाइन M45 एंड से फॉर एन नॉट फॉर मुंबई, विल डू इट फॉर से डॉकयार्ड. सो हम लोग को ये डिज़ाइन करना है कि we will also change this. So we have a 10 mm aggregate size and around 1.8. So 2.0. This is 2.65 scope cement का 2% air content we want to plus, so we put it 1.5%. So this is a good quality admixture. To 40% replacement is permitted. Okay, and then और एक लाइन यहाँ पे ऐड करते हैं. तो slump requirement जो है मेरा, slump required is say 75. So this is what I require a slump. ओके, सो ये हम लोग का भी क्वेश्चन है. ठीक है. तो सबसे पहले जो क्लास में थे M45 मिक्स का टारगेट स्ट्रेंथ निकालो, कैसे निकालते हैं? सो M45 का टारगेट स्ट्रेंथ कहाँ से निकलेगा? ये फॉर्मूला से. M45 के लिए हम लोग S क्या यूज़ करेंगे? 5, राइट? एंड देन T 1.65 है एंड दिस इज 45. ओके, सो FC के क्या आ रहा है बताओ? FC should come out to be should come out to be, second now,
ओके, so कितना है आपका स्ट्रेंथ? कोई है क्या मीटिंग में? इसने कैलकुलेट किया? हेलो, 53.25. Okay, so M45 के लिए you are getting 53.25, right? So you get 53.25 is the strength. तो अभी आपको टारगेट स्ट्रेंथ 53.25 मिल गया है. तो नाउ आप क्या करोगे? You go to next slide and then you decide water cement ratio. तो यहाँ पे आप देखोगे 53.25 कहाँ पे? ये F में. Okay, so you go to F. ये F वाला चार्ट ये वाला है. देन आपको डिसाइड करना है 45 यहाँ पे बीच में आएगा कहीं पे. ओके, एंड 45 में F ये यहाँ पर है. ये सबको मिला तो यहाँ से आप आओगे यहाँ पे नीचे एंड देन यहाँ पे से आपको मिलेगा ये आपका हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो. फॉर एग्जांपल वी आर समवेयर बिटवीन 40 एंड 45, सो लेट्स पिक 42.42. ओके, सो अपना वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गया? 0.42. ग्राफ पढ़ते आया सबको? कौन थे भाई? DM करके पूछ रहे थे यस कोड मेथड एक बार फिर से कवर कर दो. डिड यू गाइस गेट इट? ओके, सो पे अटेंशन यार. ये ग्राफ पे आपको मिल गया. तो नाउ यू हैव एन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.42. सो आई कीप इट इन टेक्स्ट. ओके, सो नाउ व्हाट यू डू, यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, एंड देन यू सी हियर. ओके, यू सी द एनवायरनमेंट कंडीशन, राइट? जो यहाँ पे हम लोग के पास क्या था कि वी आर गोइंग टू मेक इट फॉर अ डॉकयार्ड. Okay, dockyard means there is a port and obviously there is going to be high water exposure. So see, concrete surface exposed to sea water, spray corrosive fumes or severe freezing environment. Okay, that is a very severe environment. Okay, so and surface members in tidal zone or in direct contact with liquid or soil of aggressive chemical. This is extreme environment. We are in very severe environment. And this is exposed to sea water spraying, मतलब इस पे छींटे उड़ रहे पानी के. So we are making dockyard, so this is in very severe environment. So we go to very severe environment and we see के we are making reinforced concrete. So very severe environment reinforced concrete में minimum grade is M35. Okay, but we are using M45 grade of concrete, so there is no issue with that. Maximum water cement ratio is permitted is 0.45, but we are using 0.42. Okay, so we are also okay with that. तो ये तो यहाँ पे चेक करना होता है कि अगर इसमें से सपोज यू आर यूजिंग 0.47, देन कोड सेज कि वी हैव टू यूज मैक्सिमम ऑफ 0.45, तो वील यूज 0.45. ओके, सो बट नाउ वी आर यूजिंग 0.42 एंड M45 ग्रेड, सो वी डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. आफ्टर फाइंडिंग सीमेंट कंटेंट विल ऑल्सो क्रॉस चेक विद दिस सीमेंट कंटेंट. अगर इसने बोला कि 340 kg मिनिमम यूज़ करना है और अगर हम लोग इससे कम यूज़ कर रहे हैं तो विल कम एंड इंक्रीज दिस टू 340. ओके, सो नाउ वी से वी हैव एन एग्रीगेट साइज ऑफ कितना बोला था मैंने? We have an aggregate size of 10 mm. Okay, so we have 10 mm aggregates. So what we do, यहाँ पे से हम लोग 10 mm टेबल में देख के वी सी कि हम लोग का वाटर कंटेंट कितना है? 208 kg. तो हम लोग को डायरेक्ट वाटर कितना वाटर हम लोग को मिल गया 208 kg. ओके, सो वी फाइंड दिस वाटर. अभी वाटर मिल गया. इसके बाद वाटर के लिए हम लोग चेंजेस करते हैं. वाटर के लिए चेंजेस क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज एन सुपर प्लास्टिसाइजर जो हम लोग ने प्रोवाइड किया था, राइट? ये वाटर डिमांड को 25% रिड्यूस कर देता है. तो इफ़ वी हैव 208 का वाटर डिमांड जिसमें से 25% कम हो गया, तो व्हाट विल बी योर न्यू वाटर डिमांड? कैलकुलेट करो फटाफट. इट विल बी मतलब 208 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 208. ठीक है, so it will come out to be 156 kgs. So you are only going to require 156 kgs of water for if you use super plasticizer. Okay, but now you have second condition. Second condition क्या था कि this is for slump. ये जो टेबल प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, ये जो यहाँ पे टेबल प्रोवाइड किया जाता है, yes, this is for slump of 50 mm. Okay, for 50 mm slump होता है. अगर आपको slump कुछ और दिया है, say it is given 75 mm, तो for every 25 mm you increase 3% of water. ठीक है, ये याद रख लो.
लिख लो कहीं पे, फॉर एवरी 25 mm you add 3%. So it also goes reverse way. So for example, instead of 50 you need 25 mm, so you subtract 3%. So now you have 156 kg of water and now you will add 3% to it. So आप उसमें करोगे multiply 1.03, so you get 160.68 kgs of water finally. Okay, you get 160.68 kgs of water. तो ये आपका भी वाटर फिक्स हो गया, ठीक है। तो अभी आपके पास वाटर फिक्स हो गया, आपने स्लम का रिक्वायरमेंट ले लिया, एग्रीगेट नॉमिनल साइज रिक्वायरमेंट ले लिया, एंड केमिकल एडमिक्सचर का आपने वाटर रिडक्शन कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी। ओके, सो नाउ आफ्टर you have calculated water, you have water content and you have water cement ratio, right? So you calculate cement content by this formula. So water content we have 160.68 and divide by 0.42 we get 382. Okay, so we get a cement content of 382 kgs. ये सबको मिला? ये सबको मिला? Yes, you get 382.57 kgs of cement content. Okay, so again we go here, we go to this table and we check, right? मेरा very severe condition के लिए minimum cement content was 340, I am getting 382. Okay, so which is good, so I am okay. Okay, so I am okay from here, right? Then once I find cement content, I go to this table. Okay, depending upon zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 कौन से aggregate है, you divide the aggregate into ratios. Okay, so exactly you do it right now like this, but उसका अभी ज़रूरत नहीं है. So for example now we have cement का weight, we have volume of we have cement of weight of cement, we have weight of water. Now we have to find weight of chemical admixtures. तो यहाँ पे chemical admixture का dosage क्या था? यहाँ पे chemical admixture का dosage था 1.5%, right, with respect to weight of cement. Now weight of cement we find out 382 kgs. तो इसका 1.5% निकालो कितना आता है, right? इसका 1.5% कितना आएगा? किसी को आया 1.5% इसका कितना आता है? $382.57 का 1.5%, yes, 5.738, right? तो you get 5.738 kgs of super plasticizer. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर का वेट मिल गया. सो यू हैव मास ऑफ सीमेंट, यू हैव मास ऑफ वाटर, यू हैव मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स. ओके, सो ये तीन के मास मिल गए. ये तीन के स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 से आपको डेंसिटी मिल जाएगा. तो अगर मास पता है, डेंसिटी पता है, तो तीनों के आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो. यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर. तीनों आप कैलकुलेट करो अभी नेक्स्ट. ओके, सो now you have mass of everything, so you calculate volume of everything. So for example cement, I'll do it for you. You have 382.57 kgs of cement, so you get 0.1232 m cube of cement. ठीक है, वैसे ही आप सबका निकालो. You find out for water. Water will be straight forward. हम लोग ने water कितना लिखा था 160.68. You will get a water of 0.168, 1607. इतने का आपको water मिलेगा. And then you calculate for admixtures. Admixture का कितना हो जाएगा? इसे निकाला एडमिक्सचर का. एडमिक्सचर का वेट डिवाइड बाय एडमिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000. See, this is the formula. Admixture of mass या kgs of admixture divided by specific gravity into 1000. So you will get admixture का volume. तो वॉल्यूम कितना आ रहा है?
So you get this volume actually 0.00546, right? So now you have volume of cement, you have volume of water, you have volume of admixtures. तो अब 1 में से ये तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट. Okay, so this is how it is done. So for example, if I subtract it right now, मेरे को क्या आता है 0.6. So I'm getting something around 0.710. Sorry, 71064. So this is the amount of aggregate that I have. Okay, this is the volume of aggregate that I have in my system. अभी I have to find 60% of this, और जितना 60% होगा वो coarse aggregate होगा, 40% होगा वो fine aggregate होगा. So you find 60% of this. You should get actually 0.4263. So this is the amount of coarse aggregate, and if you put 40%, so that is coming out to be 0.2842. Okay. So you get this fine aggregate. तो आपको coarse aggregate और fine aggregate का वॉल्यूम मिल गया. तो एक बार आपको coarse aggregate और fine aggregate का वॉल्यूम मिल गया यहाँ से, then what you can do is, okay, we didn't account for air content of 1.5%. ठीक है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं, अभी 0 मान लेते हैं. ओके, so actually what you have to do is, instead of subtracting from 1, you have to subtract 0.015 पहले, and then आपको जो भी मिलेगा 98.95 उसमें से सब subtract करना होता है. ठीक है, so इसका ध्यान रखना एक बार. बट करंटली हम लोग को एग्रीगेट कंटेंट मिल गया. ओके, देन हम लोग के पास एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 212.65. so then we can calculate their mass. कैसे? वॉल्यूम मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई 1000. तो ये करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड मास ऑफ फाइन एग्रीगेट. सो इफ यू हैव 0.28425 एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2. सो मल्टीप्लाई बाय 2000 you get a 568.512 kgs of fine aggregate, and you have coarse aggregate, तो आपको मिलेगा 1129.917 kgs. okay, so you find these content, इसका कंटेंट यहाँ से. ठीक है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आपको मिल गया. नाउ एक चीज़ रह जाता है, होता है सरफेस मॉइस्चर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन. तो फॉर एग्जांपल यू हैव वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ 1% फॉर कोर्स एग्रीगेट, राइट. तो कोर्स एग्रीगेट हम लोग को कितना मिला था? यहाँ पे हम लोग को मिला था 1129 kg. इसका 1% क्या होगा? 11.29. ओके, सो 11.29 का इसमें से पानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना पानी कम डालना है, राइट, एंड इसमें 11.29 और ऐड करना है. तो यू गेट, इफ़ यू गेट एक्चुअली में 1141.2 का आपको एग्रीगेट मिलेगा, एंड देन यू हैड वाटर ऑफ 160.7 क्या था? 160.68 का वाटर था आपके पास. तो अब 160.68 में आपको ऐड करना है 11.29. ओके, सो यू गेट 171.97. so this will be your water after you have done adjustment for coarse aggregate. Similarly you will do an adjustment for fine aggregate, right. इसमें surface moisture 2% है, तो this water is already there in the system, so you calculate 2% of this 568 and then you subtract it from 171, and then जितना आपने 568 में से जितना पार्ट पानी डाला था उतने पार्ट को आपको फिर से ऐड करना है. तो you put more of that fine aggregate. okay, so that is how it is done, and बस यही है, ख़त्म हो गया यहाँ पे मिक्स डिज़ाइन में. अगर सबका वेट आपको मिल गया, आपने एडजस्टमेंट कर लिया, तो यू हैव केटर्ड फॉर एवरीथिंग. एक लास्ट पार्ट है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लाई एश एंड स्लैग इज अलाउड. ओके, सो दिस पार्ट में क्या करना है कि आपने यहाँ पे से सीमेंट का कंटेंट निकाला, से यू फाउंड 382 kgs. So now what you do is, if it is said कि 40% replacement is allowed, so you find 40% of this weight and then you replace that weight by any of these. Okay, so
सो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आपके उस वहाँ पे अवेलेबल क्या है उसके हिसाब से. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम रिप्लेसिंग विथ GGBS, okay, so I have 382.57 kgs of cement to use, 382.57 kgs to use, and then उसका 0.4 होता है 153.28 kgs. Okay, so instead of using complete 382 kgs of cement, I will use 153.028 kgs of GGBS, and I'll use 229.524, which is 60% of that value as cement. So this will be my calculation. Okay, so this is how you do. समझ में आ रहा है अभी सबको? Okay, so here our lecture ends. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? हाँ, अटेंडेंस ऑलरेडी चालू है पीछे, तो इट एक्चुअली गेट्स अपडेटेड एवरी 15 मिनट्स और समथिंग आई थिंक, राइट? सो फर्स्ट अटेंडेंस वाज रिकॉर्डेड एट 2:56, देन एट 3:50 एंड देन एट 4:09, एंड करंटली वी हैव अभी रिकॉर्ड किया, और अभी मेरे ख्याल से अपने पास 83 कुछ लोग हैं. ठीक है, तो इट विल कीप ऑन अपडेटिंग, तो उसका इशू नहीं है. 69 are there right now. Okay. Okay, so I think IS code method सबसे important था. Okay, so what I wanted to share was this. So instead of always designing, what you can do is you can actually create a spreadsheet. See, I'll show you. मैंने पूरा बनाया नहीं है, बट दिस इज द काइंड ऑफ स्प्रेडशीट दैट यू कैन मेक. सी, तो अभी इसमें ये कौन सा स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, ये स्क्रीन हो रहा है. ओके, सो सी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्रेड 25, 30, 35, 40, 45 लिख दिया. देन इसके लिए मेरे को मीन पता है, दिस मीन शुड बी 4, एंड इसके लिए सबके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन 5 था, तो मैं 4 और 5 का यहाँ पे लिख दिया. अकॉर्डिंगली मेरे को टारगेट स्ट्रेंथ आ गया है. मेरा टारगेट स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो टारगेट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने देख के यहाँ पे से टेबल में लिख दिया कि मेरे को कौन सा चार्ट देखना है. ओके, एंड देन वंस माय चार्ट इज फिक्स्ड, वंस माय दिस तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो चार्ट और फिक्स करके मेरे को जो स्टार्टिंग का वाटर सीमेंट रेशियो आएगा वो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा. यू कैन सी इट इज़ अबाउट 0.47 to 0.35. ओके, सो इसमें एक मिस्टेक है राइट नाउ, बट यू कैन क्रिएट दैट. सो ये मिस्टेक निकल जाएगा. उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि किसी ने यहाँ पे ग्रेड 25 डाला है, तो यू कैन डायरेक्टली पिक वाटर सीमेंट रेशियो 0.47 एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो. अकॉर्डिंगली यू पिक एन एनवायरनमेंट, यू ऑल्सो क्रिएट अ टेबल फॉर एनवायरनमेंट. ओके, सो यहाँ पे आपके पास जो ये एनवायरनमेंट है उसमें आपको मिनिमम सीमेंट ग्रेड या मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट ग्रेड एंड यू कैन चेक कि इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस सेल, then use that value. If not, then replace this value with this. Okay, you also have nominal aggregate size, so you can create another table यहाँ पे ऐसा. इसमें आप लिखो 10, इसमें आप लिखो नेक्स्ट में 20, एंड नेक्स्ट में लिखो 30. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा उससे करस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट सेल से वो वैल्यू पिक करके यहाँ पे रख देगा. राइट, एंड देन ये सब तो वैल्यू फिक्स होते हैं. दिस इज 3.15, राइट. देन कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का चेंज होता है, बट देन वाटर का 1 होगा. देन दिस इज फ्लाई एश, दिस इज GGBS, दिस इज मेटाक्योलिन. तो आप ये शीट बना के रख सकते हो. राइट, इसमें परसेंटेज कितना है, एंड देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फॉर्मूला. सो फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है. दिस इज G3 विच इज दिस प्लस 1.65 टाइम्स दिस. सो ओके, आई गॉट दिस वैल्यू, एंड सिर्फ मैंने इसको ड्रैग किया तो आई ऑलरेडी फाइंड इट. सो यू कैन मेक दिस चार्ट, एंड देन व्हाट यू डू इज एवरी टाइम you want to find a new grade, you just put a grade here, you put the input parameters, and then you get the concrete mix design नीचे अलग से. Okay, so you can actually create such sheets जिससे आपका मिक्स डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हो जाएगा. ओके, सो इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू दिस, एंड अगर आपको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. ये शीट आपको ऑलरेडी ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन मेक दिस. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. ओके, सो अभी आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड देन अदरवाइज विल स्टॉप द मीटिंग.